So very good afternoon to all of you. We have already started with a very important discussion of annuity. My question to you is, in case of purchase problem, what do we compute? Purchase के problem में हम क्या compute करते हैं? Present value. और deposit के problem में क्या purchase करते हैं? क्या compute करते हैं? Future value. What is the formula for the present value? X over I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. कहो मेरे साथ. Present value equal to x over I over into 1 minus 1 plus I raised to minus n. What is the formula for the future value? X over I into 1 plus I raised to n minus 1. Of that, A is equal to x over I, that I, and 1 plus I raised to n minus 1 is called the future value factor of interest. 1 upon I, 1 minus 1 plus I raised to minus n is called present value factor of interest. And then this future value is nothing but what? Annuity. Is nothing but what? Sinking fund. And if sinking fund is there, then that I will come up म्हणजे नाही तर म्हणाला you will come up on whom? तर I will come up and 1 plus I raised to n minus 1 will go down and it will become the reciprocal of the future value factor of interest, and that is called the annuity factor. That is known as the sinking fund factor. Samjha? Then we started discussion about some important applied problems. If you remember the one problem that we discussed yesterday, what did we say yesterday? We did not say anything yesterday because we did not meet yesterday. But when we met, jab we met, we said first application was something like this. You had to buy a car that you had to lease out. You have to give it on the rental basis. That company will pay you rent, but that rent is per month, per quarter, per half year, per year. And that will be say for the period of 5 years. So all what happens is that on one side you have got annuity, and on the other side you have got present value, because 5 lakh rupees car value had to be paid today, one stroke. So whenever you had to take the decision about whether that business is viable or not, ये affordable होता है क्या नहीं होता है, आपके क्लाइंट को आपको एडवाइस करना है, काउंसिल करना है कि ये बिजनेस करे या न करे. So in that case you will find the present value of the annuity. So one side 5 lakh rupees would be present value payable. On the other hand, you are getting present value receivable. अगर payable बड़ा है, receivable छोटा है, तो फिर मत करो बिजनेस. और फिर अगर payable छोटा है, जो receivable वो बड़ा है, तो फिर करो बिजनेस. Clear? The other situation was that your extremely beautiful wife likes to see Pogo before sleeping, and therefore you have to purchase what? TV. एक डीलर कहता है इंस्टॉलमेंट पे ले लो, आज की वैल्यू क्या है वो बताता नहीं है, बताता नहीं है. लेकिन दूसरा डीलर बोलता है कि कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं मिलने वाली, आज आपको इतना पैसा देना पड़ेगा. दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, डाउन पेमेंट. तो फिर अभी which dealer is better? Again what we do is we find the present value of the annuity. Now in this very situation you have got present value on both the sides.
दोनों बाजू को पेएबल ही है, जो पेएबल छोटा होगा वो अच्छा होगा, देना है तो छोटा, देना है तो अच्छा होगा. एंड देयरफॉर whichever present value payable is smaller, that dealer would be considered to be better. And now consider to yet another a very very good situation. Look at me now. If you consider the 37th question here in, समझने की कोशिश करो. Another beautiful question. मैंने आपको एक वादा किया है, और वादा जो किया है वो पेपर सेटर निभाएंगे. और वो वादा ऐसा है कि ये जो अप्लाइड सिचुएशंस है उसमें से एक प्रॉब्लम आपको आने वाला है पेपर में. हाँ, फिगर बदल सकती है, बट वॉट एवर इज द फिगर, प्रोसीजर इज द सेम. So figure is temporary, procedure is permanent. All right. Now it. Abhi, look at me. Stay back. All what happens is that आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, कि जो आज थोड़ा नामुमकिन लग रहा है, लेक्चर शुरू होने के बाद 10 मिनट के बाद क्लास में आते हो, इसका एक ही मतलब ऐसा होता है कि यू आर नॉट फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स द रीजन ऑफ फेल्यूर. दैट इज द ओनली रीजन ऑफ फेल्यूर. Chartered accountancy course is not difficult. I am repeating this almost in every lecture. It's not difficult at all. It's not 0.5%. Result is not 0.5%, was never 0.5%. ये जो एटीट्यूड है, एक दिन प्रेजेंट, एक दिन एब्सेंट, एक दिन टाइम पे, एक दिन लेट, ये क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि आपने अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूले की रिवीजन की, सिंकिंग फैक्टर के बारे में बोला, सिंकिंग फंड के बारे में, ये सब मिस हो गया आपका. सो ऑल्दो यू आर अ मिस, नेवर मिस एनीथिंग. ऐसा मत करो प्लीज. आई एम टेलिंग यू लाइक वेरी इंटीमेट फ्रेंड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. जो पॉसिबल है उसे इम्पॉसिबल मत करो. इम्पॉसिबल ही होता तो फिर आई वुड हैव टोल्ड यू ऑनेस्टली, क्योंकि ये तुम्हारे, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम एसटी बस से घूमने के ही लायक हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो. बीकॉम करो, बीकॉम बेकॉम, वैसे शादी हो जाएगी, बच्चे पालो, पर ये तुम्हारे बस की बात है. ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू चेंज दैट. एक बात सिंपल है, मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो. तुम्हारे फ्रेंड्स जो 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हारे क्लास में थे, तुम्हारे बेंच पे बैठे थे, एंड दोज हु प्रिपेयर टू गो टू द साइंस स्ट्रीम, वो जेईई और नीट के लिए 8th स्टैंडर्ड से क्लास को जाते थे कि नहीं? 8-9 स्टैंडर्ड से जाते थे कि नहीं? वो 8-9 स्टैंडर्ड से डेडिकेटेड थे कि नहीं? आप उनको पूछ के देखो. Even they, when they were in 10th standard, 9th standard, 11th standard, whatever, घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, घर में कोई मेहमान आए हो, these children never participated in that. They had those 3-4 years of full involvement in the studies. That is why they could easily crack the JEE or NEET. Now, you didn't do that. 8th स्टैंडर्ड से किसी ने पढ़ाई की थी? नहीं की थी. 9th स्टैंडर्ड से की थी? नहीं की थी. 10th स्टैंडर्ड में की थी? बिल्कुल नहीं की थी. लास्ट दिसंबर में की थी, प्रीलिम के बाद, प्रीलिम में फेल होने के बाद. तो अभी जो हो गया वो तो वापस आने वाला नहीं है. वो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का लाइफ आपकी जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है. जिंदगी ना मिले दोबारा, वो जिंदगी ना मिले दोबारा, बट चांस मिला है दोबारा.
क्योंकि आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट you are going to be superior to IIT pass out. IIT पास, IIT में से जिसने पूरा किया है वो टेक्निकल लाइन का इंचार्ज होता है, एंड यू विल बी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट. फाइनेंस एक्सपर्ट को ज्यादा वैल्यू रहती है, सबका खेल होता है पैसों के लिए, और वो तुम्हारे हाथ में है. तो chartered accountant is going to enjoy the status even over and above IITian. ये फर्तुस इंजीनियरिंग कॉलेज का बी को तो छोड़ दो, जो गली गली में कॉलेज होता है, उनसे तो तुम यू विल बी माइल्स अहेड. पर अगर उन्होंने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड से पढ़ाई की थी तो कम से कम अभी तो करो सेकंड अटेम्प्ट में. यह क्या है? ये आप कितने बार कितने दिन प्रेजेंट रहते हो, कितने दिन एब्सेंट रहते हो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो. इंट्रोस्पेक्शन इन सेल्फ असेसमेंट करो. कितने दिन सही में आते हो, कितने दिन नहीं आते हो, कितने दिन लेट आते हो, कितने दिन आते हो बट आपका खड़ू होता है. खड़ू म्हणजे ख्यालों में डूबे, किसी और ख्यालों में डूबे, किसी और के ख्यालों में डूबे. ये इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ एग्जामिनेशन करो. क्योंकि अभी आपसे आपसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आपसे कोई कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है कि तुमने क्या किया. तुम्हारा करियर तुम्हारे के लिए होना है. आप सीए बनेंगे, एग्जीक्यूटिव बनेंगे, कंपनी में सीएफओ बनेंगे, योर सिक्योरिटी पीपल विल सैल्यूट यू, योर सेक्रेटरी विल ग्रीट यू, योर क्लाइंट्स विल रिस्पेक्ट यू, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल कंसल्ट यू. तो इसका सबका जो सेटिस्फेक्शन होता है, इन सबका जो एक सेल्फ डिग्निटी होती है, ये आप खुद को मिलने वाला है. योर पेरेंट्स विल ऑल्सो नॉट बी पार्टनर टू दैट. समझा? पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो तुम्हारी अपनी अमानत होने वाली है. इवन पार्ट योर पेरेंट्स कैन नॉट शेयर दैट. दे विल शेयर योर हैप्पीनेस, but you're directly, first of all, who is going to be the receiver? You are going to be the receiver. और अगर सीए नहीं बनते हो और बीकॉम ही रहते हो और किसी एमबीए, किसी फर्तुस इंस्टीट्यूट में से एमबीए करते हो, कि जहां एमबीए मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्समैनशिप, डोर टू डोर सेलिंग. मार्केटिंग का मतलब बहुत सारा अलग है. मार्केटिंग का मतलब है मार्केट रिसर्च. ये बिजनेस यहां शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वो जो एक कंपनी महाराष्ट्र में आने वाली थी कुछ महीनों पहले, जो गुजरात में चली गई, अभी ये महाराष्ट्र में करना अच्छा होगा इसका फंक्शनिंग या गुजरात में अच्छा होगा, इसका एनालिसिस जो करता है वो मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है. समझा? तो ये कहां मिलेगा आपको? आईआईएम में मिलेगा. ये कहां मिलेगा आपको? जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट जैसे बड़े, इवन सिम्बायोसिस हैज गॉन इन दैट रैंकिंग नाउ. वहां आपको मिलेगा कि एमबीए मार्केटिंग मतलब मार्केट रिसर्च होता है. फिर मार्केट रिसर्च करना है तो फिर से ये मैथमेटिक्स बीच में आएगा. एमबीए फाइनेंस करना है तो फिर से ये सब लगने वाला है. प्लीज. तो ये जो यहां चल रहा है अभी, ये जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसमें जब तक आप मास्टरी नहीं मिलाओगे, तब तक जिंदगी में आप कुछ भी बनने वाले नहीं हो, unless you are very good in performing art or sports. हाँ, डांस में if you are good, स्पोर्ट्स में if you are good, singing में you are good, playing the musical instruments if you are extraordinarily good, then you don't have to study all these things. Then सिर्फ अपनी कला को enjoy करो, और फिर you will get the fame, name, fame, money will also you will get.
लेकिन इतना टैलेंट तो आप में है नहीं ना, बराबर ना। भीमसेन जोशी ने जो किया, किशोर कुमार ने जो किया, मोहम्मद रफी साहब ने जो किया, और लता मंगेशकर ने जो दिखाया, इतना टैलेंट आपके पास है क्या कि खुद को? सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड्स बनाए, वो इंटेलिजेंस आपके पास है क्या? क्रिकेट में है क्या, फुटबॉल में है क्या, किसी गेम में है क्या? और फिर नहीं है तो फिर आपके पास एक ही चारा है, और वो है स्टडी करो। नहीं तो फिर शादी करो। तो क्या, और क्या कर सकते हैं ना? वो एक ही थिंग ऐसी कि जो नेचुरली होगी, समझा? बाकी सबके लिए मेहनत लेनी करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लेना पड़ेगा। तो व्हाई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आज भी लेट हुआ नहीं है। वी आर स्टिल इन द मंथ ऑफ मार्च। अभी हाफ मार्च, अप्रैल, मई, हाफ जून, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स टू गो, एंड देयरफॉर अभी भी लेट नहीं हुआ है। लेकिन और 15 दिन अगर लेट करेंगे तो फिर नेवर पॉसिबल। मत थर्ड अटेम्प्ट, एंड फॉर यू ऑलरेडी दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड अटेम्प्ट। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट में होगी तू? कितने अटेम्प्ट में पास होगी? तो मैक्सिमम, या 3? तो बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कभी प्रेजेंट कभी एबसेंट, या नहीं चलने वाला। कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाव, ये जिंदगी के साइकिल में चलता है, स्टडी के साइकिल में नहीं चलता। वहां हमेशा धूप ही होनी चाहिए पासिंग होने तक। फाउंडेशन एक बार क्लियर होते हो तो फिर आपको फिर कोई नहीं पूछेगा कि ये फाउंडेशन का क्या है, या पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, ये कोई पूछने वाला नहीं। पर जब तक होता नहीं है तब तक, वेल, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन करियर, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन करियर। तो एक मार्क एप्लीकेशन के प्रॉब्लम में अगर आपको, आई एम गिविंग यू द कॉन्फिडेंस, 100% आने वाला है अभी इस आपके अटेम्प्ट पे, सेकंड अटेम्प्ट में, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, के लिए वो समझना पड़ेगा। तो सपोज you go in the job, you can work till the age of 6060। अगर आप जॉब करते हो, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, प्रैक्टिस में जाते हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो फिर उम्र का कोई लिमिट नहीं। यू कैन प्रैक्टिस टिल द एज ऑफ 100 ऑल्सो, बट इफ यू गो इन जॉब, then you will have to take the retirement at the age of 6060, and in some government sector it is at 5858। अभी जब आप रिटायरमेंट आप लोगे, उसको कहते हैं सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन, जब आप रिटायरमेंट लोगे, इन अदर वर्ड्स, आपका इनकम बंद हो जाएगा। फिर भी आपका खाना बंद नहीं होगा, आपका पीना बंद नहीं होगा, पीने की आदत है तो पानी पीने की, बराबर ना। सोना थोड़ा कम होता है, पर सोना म्हणजे नींद कम होती है, आवट करा करायचा। फिर भी पैसों की जरूरत होती है ना, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, पर आपके मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, बराबर ना। तो ये रिटायरमेंट के बाद आप आपकी जिंदगी कैसे बिताओगे, इसका प्लानिंग करना, ये भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, ये भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम है। उसके लिए क्लाइंट आपके पास आएंगे कि हाउ शुड आई मेक द प्रोविजन फॉर माय रिटायरमेंट लाइफ, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। तो वहां क्या होता है कि अगर आप कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में से कुछ कुछ पैसा
आपके सैलरी में से डिडक्ट होगा, और फिर उसको उस पैसे में एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी गिवन बाय योर कंपनी, प्रोविडेंट फंड कहते हैं। फिर वो पैसा आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, वो वन सिंगल अमाउंट आपको मिलेगा। वो सिंगल अमाउंट का आप कुछ भी करो, बट यू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर रिमेनिंग लाइफ टिल योर लास्ट ब्रेथ। ओके, बट अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो, सुना होगा आपने, ये प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, दे आर गिविंग सम प्रॉमिसेस दैट वी विल ब्रिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम बैक इन प्रैक्टिस। हम भी वाचतच नहीं म्हणून, न्यूज पेपर हम पढ़ते नहीं, और पढ़ेंगे तो भी सिर्फ उसमें से फोटो दिखते हैं, वो पूरे टाइम्स में आते हैं वो। बट इफ यू आर हैविंग द कीन इंटरेस्ट, बिकॉज ये आपका फील्ड है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट प्लान इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ता है। उसके लिए आज से कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है जो कंपनी देगी। फिर दैट इंश्योरेंस कंपनी विल इन्वेस्ट इट पार्टली इन इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा होती है। पार्टली इन बॉन्ड्स, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा बॉन्ड का है, देखो, आई टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। लेकिन जब आप रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60 पे भी, आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स जब से आप शुरू करते हो, उस पर डिपेंडेंट है, तो फिर आप वो इंश्योरेंस कंपनी आपको महीने का पेंशन देगी। और गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? गवर्नमेंट विल गिव यू द पेंशन। जो 2005 के पहले कॉलेज में प्रोफेसर बने थे, या रेलवे में थे, या पोस्ट में थे, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो उनको क्या होता था, 2005 में जो ज्वाइन हुए उनके, उसके पहले जो ज्वाइन हुए उनके लिए, कि गवर्नमेंट विल गिव यू द पेंशन। अभी इन सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन दिया जाता है? आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर द पेंशन, either you can opt for the pension, or you can take the single value that is always known as the fund। समझा? तो पेंशन में क्या होगा, हर मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर, जो भी आप बोलेंगे वैसे आपको एक अमाउंट मिलेगी। उस पे आप आपका ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सर्वाइवल आपका पॉसिबल हो कर बना सकते हो। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखो, प्रेजेंट प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि अ पर्सन रिटायरमेंट टेकिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब इज एश्योर्ड, पढ़ो वहां, इज एश्योर्ड द पेंशन ऑफ 15,000 पर मंथ। अभी ये पर मंथ पर क्वार्टर है कि नहीं? तो पर मंथ पर क्वार्टर है, इसलिए ये हो गई एन्यूटी। और एन्यूटी is X. That annuity X is nothing but 15,000 per month. ये कब तक मिलेगा? जब तक आप जिंदा हो, टिल योर लास्ट ब्रेथ। इसलिए ये सब पेंशन वालों को एवरी ईयर लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर रिलेटिव्स, दोज हु आर इन द गवर्नमेंट जॉब। लाइफ सर्टिफिकेट क्या? मैं जिंदा हूं, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो बैंक के ऑफिसर के सामने वो साइन करना पड़ता है। अभी ऑनलाइन भी किया है। ऑलराइट, तो आपको जब तक आप जिंदा हो उस दिन तक पेंशन मिलेगा। जिस दिन डेथ होती है वहां से पेंशन बंद होता है। फिर फैमिली पेंशन बोलते हैं, मतलब आपके वाइफ को, या फिर वुमेन है तो उसके स्पाउस, मतलब योर स्पाउस विल गेट द हाफ ऑफ द पेंशन, ऑलमोस्ट हाफ, बट दैट इज अपार्ट। पेंशन इज गिवन टिल यू आर अलाइव। समझा? अभी आप कितना जिंदा रहेंगे ये आज कैसे समझेगा ना? पेंशन शुरू करते समय, रिटायरमेंट होते समय आप कब मरोगे ये कैसे समझेगा? हाँ, इसी पे मरना है तो वो समझ सकते हैं, लेकिन फिजिकली मरना है ये नहीं समझ सकते कब मरेंगे। तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको क्या बोलता है, हाँ तुमको 15,000 पर मंथ देंगे जब तक यू आर अलाइव।
और दूसरा ऑप्शन होता है कि ये पेंशन इन लीव ऑफ पेंशन, इन लीव मतलब इन प्लेस ऑफ पेंशन, equivalent single value will be given to you, that fund will be given to you, and government will say take this big amount today, take care of yourself. अभी ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको ये समझ में नहीं आता कि ये बेटर है वो बेटर है, ये अच्छा है वो अच्छा है, पेंशन को ऑप्ट करूं या फिर फंड को ऑप्ट करूं। फिर वो ये क्वेश्चन किसको पूछेगा, किसको पूछेगा? आपको पूछेगा। क्यों? बिकॉज यू आर द फाइनेंस एक्सपर्ट, यू आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। वो आपको पूछेगा कि शुड आई गो फॉर पेंशन, शुड आई गो फॉर फंड। तो आप उसको पूछेंगे कि ये फंड कितना मिलने वाला है, तो आप कहते हैं वो मेरे को पता नहीं, वो गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, फंड की अमाउंट क्या है वो नहीं बताया है, पेंशन की अमाउंट पता है पर मंथ 15,000, और कब तक मिलेगा, जब तक जिंदा हो वो भी समझ पता है। तो फिर अभी कितने साल तक पेंशन देना पड़ेगा ये गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है ना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? देयर इज अनदर स्टैटिस्टिकल टूल, आपके सिलेबस में पहले था अभी नहीं है, वो है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल थ्रू विच यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल सर्वाइव दीज मेनी ईयर्स, और उसमें से एक एवरेज लाइफ निकाला जाता था पूरे सोसाइटी का, एवरेज लाइफ निकाला जाता था, अरिथमेटिक मीन निकाला जाता था। और वो मीन जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर हाउ मेनी मोर इयर्स पोस्ट रिटायरमेंट। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे निकालेंगे? बहुत सारी चीजें होती है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। इफ यू आर इन कंट्री लाइक इंडिया then possibly your life expectancy is more. But if you are in the country like Bangladesh, where their climatic conditions, weather conditions are extreme, जब बारिश होती नहीं है तो सब कुछ जल जाता है, और दबा 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 इतनी बारिश होती है कि सब कुछ बह जाता है, करेक्ट ना? वहाँ वो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ थोड़ी सी कम होगी। इट डिपेंड ऑन दैट, इट डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन। प्रोफेशनल हजार्ड होता है। आप अगर माइंस में काम करते हो, आप ऐसे एरिया में काम करते हो कि जहाँ रिस्क होती है, टॉक्सिक गैसेस में आपको वह रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है, पॉइजनस कंडीशंस में रहना, टॉक्सिक कंडीशंस में रहना पड़ता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, समझा ना? आप अगर आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, क्योंकि वहाँ आपके मृत्यु का चांस बहुत ज़्यादा, कब कहाँ से गोली आएगी लगेगी जान जाएगी पता नहीं होता है, नथिंग इज श्योर। The only sure thing, only certain thing, where if you become the soldier, the only certain thing is uncertainty. तो उनके लिए ये एक्सपेक्टेंसी अलग हो सकती है, लेकिन एवरेज एक्सपेक्टेंसी निकाल सकते हो। गवर्नमेंट क्या करेगा? एवरेज एक्सपेक्टेंसी निकालेगा। अभी ये एवरेज एक्सपेक्टेंसी हर एक के लिए वो सेम रखेंगे। तो कितना दिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हियर? 7 more years। रिटायरमेंट के बाद 7 more years, मतलब से एज ऑफ 60 रिटायरमेंट हुआ तो 7 more years में 67, इधर एवरेज लाइफ, इधर एवरेज एज। तो हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हाँ कि 7 years हो गए मतलब अभी आप मरने वाले हो, जिस दिन 7 years पूरे हो गए आप मरोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन बी अलाइव फॉर 50 more years, और यू कैन डाई बिफोर दैट ऑल्सो। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मेरा 67 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कंट्री में और मेरा एज अभी 60 है, तो मैं अभी रोड कैसे भी क्रॉस करूंगा, मैं मरने वाला नहीं, 67, ऐसा भी नहीं है। कोई जल्दी मरेगा, कोई उसके बाद भी नहीं मरेगा, 67 के बाद जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन एवरेज में 67 है। तो फिर गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एज एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन the fraternity of the whole group of those government employees, समझा?
तो गवर्नमेंट क्या पकड़ के आपको ये फंड कैसे निकालेंगी? 7 years का लाइफ कंसिडर करेगी, एंड बट दिस इज मंथली ना, and therefore this period is going to be 7 years. But what is 7 years is going to be 84, oh madam, 84 months. समझा? Now rate of interest कुछ पकड़ना पड़ेगा. Rate of interest is stated here. What is the rate of interest? So R is given to be 9%, but 9% is per annum. And if it is say 9% per annum, it is going to be 9 divided by 12. 0.75% per month. So I will be equal to what? 0.75 divided by 100. That is equal to 0.0075. अभी इसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगी वो फंड वैल्यू होगी. अभी फंड कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा. मरने के बाद मिलेगा क्या फंड? और काहीतरी बोला ना, कब मिलेगा? अभी रिटायरमेंट होते समय मिलेगा ना. तो ये फंड वैल्यू हो गई प्रेजेंट वैल्यू. तो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द सिंगल सम इन लीव ऑफ पेंशन? तो दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू. वापस हम वही आ गए, एक बाजू है एन्युटी, एक बाजू है प्रेजेंट वैल्यू. अभी आप क्या करेंगे? द स्टोरी विल कंटिन्यू. दैट क्लाइंट हैज कम टू यू. आपको वो उसको एडवाइस करना है. क्या एडवाइस करना है? सिंगल सम लेना है, फंड लेना है, या फिर पेंशन लेना है. तो आप क्या करोगे? पहले एक लेटर लिखोगे, and you will send your client to the medical doctor, your doctor of finance, और उसे तुम बोलेंगे इसकी जो भी टेस्ट करना है करो, और ये अभी कितना जिंदा रह सकता है वो एस्टिमेट करो. का you will get the medical examination of your client done. फिर अगर वो डॉक्टर कहता है कि इसको ब्लड कैंसर है, वो कल ही मरने वाला है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये जो फंड वैल्यू है वो 84 मंथ्स इक्विवेलेंट वैल्यू है. और पेंशन लोगे तो तुमको 1 महीने की पेंशन मिलेगी, 1 दिन की पेंशन मिलेगी. आज फंड लोगे तो 84 मंथ्स इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी. और अगर पेंशन ऑप्ट करते हो तो फिर 1 दिन की पेंशन मिलेगी. तो विच इज बेटर? फंड इज बेटर. गो फॉर द फंड. लेकिन डॉक्टर कहता है इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ठंडड़ित है और 4 बीबियों के साथ रह सकता है. तो काय बरोबर ना. इन पुणे सिटी few years back, around 10 years back, one person was arrested for on the account of rape case था. His age was 89. 89 में रेप. अभी ते जाऊ दे. तो फिर देखो मेरे तरफ, इसको कुछ नहीं होने वाला. इसका लाइफ 100 years तक इसको कुछ नहीं होने वाला. अभी पेंशन कितने महीने की इक्विवेलेंट है? 84, 7 years. और आप कितना जिंदा रहने वाले हो इसके बाद? 40 साल. तो पेंशन 40 years मिलेगी और फंड सिर्फ 7 years इक्विवेलेंट मिलेगा. तो यू विल टेल योर क्लाइंट टू गो फॉर व्हाट? पेंशन. तो हेल्दी है तो पेंशन, और अगर वो अनहेल्दी है तो फिर गो फॉर द फंड. अनदर फैक्टर इज, आपका क्लाइंट को पूछेंगे कि ये पैसा समझो तुमको आज मिला, तो तुम इसका क्या करने वाले हो? इस पैसे को तुम क्या करेंगे? वो आगे बोलता है कि मैं बैंक में रखूंगा, एफडी रखूंगा, फिर इसके इंटरेस्ट पे बाकी जिंदगी. तुम बोलेंगे कि इसमें रिस्क होती है. एक तो क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे रेट ऑफ इन्फ्लेशन बीट करता है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव. वो क्रैश करता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पैसों की वैल्यू कम कर देता है. महंगाई बढ़ती है, वो हमें और चैप्टर में देखना है इंडेक्स नंबर में. महंगाई बढ़ेगी तो पैसों की वैल्यू कम होगी, डिवैल्यूएशन होगा.
तो आज 100 रुपीज़ में आपको क्या मिल सकता है, वो 10 ईयर्स के बाद नहीं मिलेगा, के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, अभी आप रिटायरमेंट हो चुका है आपका। तो इन्फ्लेशन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी पे मिलता है उसको क्या करता है, बीट करता है, डैमेज करता है। अभी उसके अगर, तो आप बोलेंगे कि नहीं आप वो बैंक में रखेंगे तो कुछ काम का नहीं है, ये पेंशन ऑफ करो, पेंशन ले लो, क्योंकि पेंशन में गवर्नमेंट कभी कभी वो डीए बढ़ाता है, वो डीए कैसे होता है वो भी इंडेक्स नंबर का चैप्टर है। तो पेंशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, डीए ऐड होता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं। अभी इन दैट केस यू विल सजेस्ट योर क्लाइंट टू गो फॉर व्हाट, पेंशन। लेकिन वो बोलता है मैं क्या करूंगा इस पैसे का, अरे मेरे को तो इतना एक्सपर्टाइज है कि मैं इसे बिजनेस करूंगा, और ये पैसा अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरे को 20-25% महीने का, मतलब 20-25% पर एनम इतना रिटर्न तो मैं वैसे भी कमा सकता हूँ। यहाँ पेंशन में कितना है पकड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9%। if you are, your client is confident of getting anything above 9%, you will tell him go for fund, go for the fund, क्योंकि 9% से ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये फंड में और भी तुम पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, if they are well to do, no risk, you can go for the fund. But if they are not doing well financially, they will come to know you have got a big sum of money, and they will take away that money from you. कोई ना कोई बहाना बना के वो आपसे पैसे ले लेंगे, and later on even daily bread and butter will become your problem. समझा? तो you will say no, don't take a risk, go for the pension. एक महीने के पहले तारीख को इतना पैसा मिलेगा, at least your survival will not be difficult. हो मना। तो ये सारा एनालिसिस किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। लेकिन आप ही कहेंगे मैं एब्सेंट था तब, वो शिव जयंती थी, फिर वो म्यूजिक बज रहा था, रास्ते बंद थे, मैंने ही अटेंड किया, मैंने ये ऐसा कैसे चलेगा ना, यू हैव टू बी सेल्फिश। शिवाजी महाराज हो या कोई और बड़े आदमी हो या कोई और गॉड हो, जो कुछ भी है, उनके लिए तो हम 100% कमिटेड है, डिवोटेड है, या द डिवोटीज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल ड्यूटीज। तो फिर क्या होगा, एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज गोइंग ऑन, 2020 मैच इज गोइंग ऑन, 19 overs and 5 balls are already bowled, एक बॉल बाकी है, इंडिया के 9 विकेट्स डाउन है, लास्ट पेयर इन है, और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। इतना क्या है, बरका लास्ट बॉल है, 9 विकेट डाउन है। अभी जो लास्ट बॉल होगा उस पर अगर सिक्सर मारोगे या 5 रन किसी तरह से ले सके, 5 रन मिलने का चांस होता है। तो अगर विकेट कीपर ने हेलमेट रखा है और फिर उसको जाके वो बॉल धड़कता है तो 5 रन दिए जाते हैं। But now we are not talking about the game of cricket at present, but suppose ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करो, एक्साइटिंग सिचुएशन, थ्रिलिंग सिचुएशन, क्या होगा का? और फिर ये एक्साइटिंग सिचुएशन, थ्रिलिंग सिचुएशन इतनी थ्रिलिंग हो जाती है, और कोई सर्जन है, हार्ट सर्जन है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गया, this example I had given on the TV. I have been invited on the TV for interviews at many places on many channels. कभी V24 तास, कभी ABP माझा, कभी लोकमत, IBN लोकमत. So in one of the interviews they had asked me the question. So that there I had narrated this situation. तो फिर वो सर्जन है, पेशेंट को लिया गया है ऑपरेशन थिएटर में, असिस्टेंट डॉक्टर ने वो बाकी सब एनेस्थेसिया दिया है, और वो हार्ट ओपन किया है, सब कुछ किया है असिस्टेंट डॉक्टर ने। अभी ये मेन डॉक्टर है, मेन सर्जन है, उसको जाके मेन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अभी एक ही बॉल बाकी है। वो सर्जन कहेगा कि अभी जाने दो, वो पेशेंट एक बॉल में देखूंगा, ये एक्साइटिंग सिचुएशन है, 6 रन मिलता है, 4 रन मिलते हैं तो टाई होगा। कैन द सर्जन डू दैट? वो मरेगा ना पेशेंट।
So he can't do that. He has to avoid that situation, that temptation of enjoying that one ball. He has to rush to the operation theater. तो ये सर्जन को नेसेसरी है, तो फिर बिकॉज यू आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस आपके लिए भी तो ये नेसेसरी है. यस नो. तो फिर आपको ये सबकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सब आपको सीखना पड़ेगा. ये ऐसे फेस्टिवल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे. हमें रिस्पेक्ट है, हम अंदर से रिस्पेक्ट करेंगे, बाहर नाचने में क्या रिस्पेक्ट. तो फिर इफ यू आर मिसिंग द क्लास ऑन अकाउंट ऑफ दैट, यू कांट बिकम द एक्सपर्ट. समझने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो. अभी ये सब आपको अगर पहचान, आप इस सबके नॉलेज अगर लाओगे, कंपाइल करोगे, यूज करोगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर यू कैन गिव द बेटर एडवाइस टू योर क्लाइंट. ऑलराइट. And therefore, all those are online, you also had to take care of this. As far as possible, don't miss a single lecture. Anyway, तो फिर होता क्या है कि 7 years इक्विवेलेंट जो मनी होगा वो मतलब फंड वैल्यू. फिर यू विल डू द कैलकुलेशन, देन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हिज लाइफ लॉन्गेटिविटी, कितना जिंदा रहने वाला है वो, बस बाकी चीजों से आप उसको एडवाइस करेंगे. लेकिन पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये 7 years इक्विवेलेंट वैल्यू होती कितनी है. वो क्लाइंट आपको पूछेगा, वो मैं उसका क्या करूंगा बाद में, कितना मिलेगा वो तो बोलो पहले. फिर तुम बोलेंगे मेरे को भी नहीं पता, ये लिया था फाउंडेशन में लेकिन मैं एब्सेंट था. ऐसा चलेगा क्या? कैन अ डॉक्टर से दैट आई डोंट नो हाउ टू यूज द स्टेथोस्कोप, वो कहाँ रखना है, बल्कि का ऐसा नहीं चल सकता. तो फिर आपको ये समझना होगा कि ये जो पेंशन है वो एन्यूटी है, और उसकी इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फंड है. तो इन शॉर्ट, एक बाजू एन्यूटी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उसकी. हाँ, लेकिन यहाँ डिसीजन नहीं दे, कंपैरिजन नहीं करनी है ए और बी में. पहले दो प्रॉब्लम्स में कंपैरिजन थी. एक में था पेएबल वर्सेस रिसीवेबल, एक में था पेएबल वर्सेस पेएबल. यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां कॉम्प्यूटेशन आपको करना है. एंड देयरफॉर दिस प्रेजेंट वैल्यू, यूजुअल फॉर्मूला x over i 1 minus 1 plus i raised to minus n. So that is going to be what? 15,000 divided by 0.0075. कुछ तो कहो. Then 1 minus 1.0075 and that raised to minus 84. करो कैलकुलेशन. समझा क्या बात ना? ये थर्ड एप्लीकेशन है. हाँ, 9,32,000. सत्यम, वेरी गुड. 9,32,309. 9,32,309. इतनी रकम उसको मिलेगी अगर वो फंड को ऑप्ट करता है. लेकिन आप अगर जॉब में नहीं जाएंगे, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे, मेरे जैसे गरीब आदमी, मेरे का सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, तो फिर ना आपको पेंशन मिलेगा ना आपको फंड मिलेगा. आपको आपका खुद का देखना है. खुद का देखना है, खुद का लाइफ के बारे में सोच. समझा क्या? करो कैलकुलेशन अभी, वो राइट इट. तो इस प्रॉब्लम में भी क्या हो गया, एक बाजू है एन्यूटी और उसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू. तो निकालो, दैट्स इट. 9 लाख इतना वैल्यू मिलेगा, 32,309. ये आपको क्लाइंट को मिलेगा आज इन लीव ऑफ, मीन्स इन प्लेस ऑफ पेंशन. थोड़ा सा ये एप्लीकेशन पे ज़्यादा टाइम हम इसलिए दे रहे कि आई फील दैट देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इन योर एग्जाम. समझा? इज ए सिचुएशन क्लियर? विजुअलाइज करो, खुद को उस सिचुएशन में प्लेस करो, उस भूमिका में खुद को लेके जाओ. एक्टर क्या करता है, वो होता कुछ और है,
रियल लाइफ में, लेकिन वो स्क्रीन पे जब एक्टिंग करता है तो वो जो रोल उसे निभाना है, जो रोल उसे अदा करना है, उसके साथ वो मिल मिल जाता है, मतलब समझा ना? नहीं तो ऐसे कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं मूवी में, अगर वो उस समय वो एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो नहीं होगा, और वो एक्सप्रेशन कोई बाद में भी कंटिन्यू करेंगे तो भी नहीं होगा, फिर रियल लाइफ खत्म होगा, है कि नहीं? यू हैव टू बी टेम्पररीली पुटिंग योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। समझा? गुड। अभी समझा ना आपको? So that was another application, third application. Let us move on to the fourth application now. A 5 years bond. देखो अभी एक जो सेक्टर जिसमें आपको काम करना पड़ेगा वो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर. So you have to be very good in share market. You have to be very good in commodity market, silver, gold और जो भी commodity, even potato will be treated to be commodity. वहाँ भी तो ऐसा ये bond होता है, मतलब ये situation होती है, market होता है. You can consider of real estate. You have to know about the insurance sector. वैसे you have to know about the bank deposits, fixed deposit जिसको कहा जाता है. Very simple way, go in the bank deposit, बैंक आपको interest देगा. लेकिन यह सब में क्या होता है, अलग अलग तरीके का एक्सपर्टाइज लगता है. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो अगर आपको कंसल्टेंसी करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए, उसके कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. आपको टाइम सीरीज एनालिसिस नाम का एक ब्यूटीफुल चैप्टर सिलेबस में था जब ये फाउंडेशन का सिलेबस डिजाइन किया था, लेकिन बाद में उसमें एमसीक्यू डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, इसलिए वो चैप्टर निकाल दिया, उसको फाइनल में डाल दिया. तो इफ एट ऑल यू रीच फाइनल यू विल स्टडी देयर. तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करके प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग आपको पता होना चाहिए, रिग्रेशन आपको पता होना चाहिए, रिग्रेशन इज फोरकास्टिंग, वो आपको पता होना चाहिए. तो फिर ये सब आपको पता है तो फिर आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ेगा, कम होगा, वैसे ही रहेगा, क्या होगा. समझा? तो ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन ये अगर ये एक्सपर्टाइज रियल इस्टेट के बारे में देखो, वो 7/12 एक्सट्रैक्ट 7/12 तो उतारा असतो, वो आपको पढ़ना आना चाहिए. जैसे वो होरोस्कोप असतो ना, ती पत्रिका असते, वो पढ़ने वाले वो जो होते हैं कि ना एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ वैसे ये 7/12 पढ़ना, उसको समझना, उसके रिस्क अंडरस्टैंड करना, वो भी तो एक्सपर्टाइज का मामला है. कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज. रियल इस्टेट में जितना रिटर्न्स मिलता है उतना शेयर मार्केट में भी नहीं मिलता. मेनी टाइम्स आई हैव गॉट द मनी ट्रिपल्ड इन 1 ईयर. 2011 में जो पीस ऑफ लैंड लिया था 11 लाख में, उसकी आज की वैल्यू है 4 करोड़. इतना रिटर्न तो शेयर मार्केट में भी नहीं मिलता. समझा? I do in real estate, I play in real estate, therefore I can tell you, but that is not the point of concern in the revision lectures. The point is हर एरिया में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती है, मेरिट्स होती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है. एक्सपर्टाइज इज वन लिमिट. रियल इस्टेट में आप जेब में 1 लाख रुपए जाके वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे ना रियल इस्टेट में. देयर यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ सम ऑफ मनी, ह्यूज सम ऑफ मनी. शेयर मार्केट में ले सकते हैं 1 लाख रुपए में कुछ ना कुछ मिलेगा. समझने की कोशिश करो. बैंक डिपॉजिट में आपके पास है, कितना भी पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो, छोटे कम कम अमाउंट पे भी खेल सकते हो. लेकिन वहां क्या होता है, जैसे मैंने बोला, रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल किल इट. सेकेंडली जो पैसा इंटरेस्ट बैंक देता है वो टैक्सेबल होता है, तो वैसे भी वो टैक्स चला जाएगा. समझा? अगर आपको बैंक ने दिया 7%, उसमें से आपको 30% तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो 2% वैसे भी लूज हो गया, 5% रहा. और रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर 8% है तो तुम गरीब होंगे ईयर बाय ईयर, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो डाउन. तो ये सबके ऊपर एक वाया मीडिया निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से. दे ब्रिंग अबाउट द बॉन्ड इन द मार्केट. बैंक क्या, गवर्नमेंट क्या कहेगा, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, बैंक लोन देता है, बैंक का बिजनेस होता है.
इसके बदले तो हमें पैसा दे दो गवर्नमेंट को, हमें ब्रिज बनाना है, सड़क बनाना है, भ्रष्टाचार करना है, खाना है, हमें पैसा दे दो, look, and we will give you the good interest. Or basically, because we are giving, government is giving that interest, it will be tax free. उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो वैसे भी बैंक से 2% तो ज्यादा वैसे भी हो गया ना, और फिर 100% सेफ है। जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो तभी डूबेगा जब गवर्नमेंट डूबेगी। अगर समझो वो सी लेवल बढ़ रहा है, 3-4 days बैक देयर वाज अ न्यूज, सी लेवल ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बढ़ रहा है, अभी पूरे इंडिया में पानी भर गया है समुद्र का, तो गवर्नमेंट रहेगा ही नहीं ना, वो आपको पैसा कौन देगा? पर वो पैसा लेने के लिए आप भी तो जिंदा नहीं रहेंगे ना, बराबर कि नहीं? तो गवर्नमेंट डूबेगा तो हम सब डूबने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के पास प्रैक्टिकली 100% सिक्योरिटी है, श्योरिटी है। समझा क्या बात? नो समृद्धि अभी गवर्नमेंट विल ब्रिंग द बॉन्ड, उसकी कुछ फेस वैल्यू होती है, पार वैल्यू जिसके बोला, ये वैल्यू फेस वैल्यू, जैसे शेयर को भी फेस वैल्यू होती है, जिसमें वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है शेयर की, वैसे बॉन्ड की भी वैल्यू है। क्या वैल्यू है बॉन्ड की? लुक एट द प्रॉब्लम, फेस वैल्यू या पार वैल्यू क्या दी है? द फेस वैल्यू, द पार वैल्यू इज गिवन टू बी 1 lakh. So 1 lakh is the face value, is the par value of the share of that bond, which is rupees what? 1 lakh. This is a 10% bond, correct ना? 10% bond. तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगा? 10% ऑफ 1 lakh, 10,000 आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। समझो कितने ईयर के लिए? 5 साल के लिए दिया है वो, 5 साल। तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, how many times will you get? 5 years. 5 years, every year you will be getting 10,000. 5 साल हो गए। बॉन्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो गया, अभी आपके जो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास थे वो गवर्नमेंट आपको दे देगा। समझा? तो यहां होने क्या वाला है, year 1 you are going to get 10,000, year 2 you are going to get 10,000, year 3 you are going to get 10,000, year 4 you are going to get 10,000, and 5th year we are going to get 10,000. और 5th year में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में और भी कुछ आपको मिलने वाला है। और वो क्या मिलने वाला है? जो ओरिजिनल फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपए आपको वापस मिलने वाला है। तो ये 1 लाख रुपए भी आपको वापस मिलेगा। कब? 5 साल के बाद। समझा? अभी एक और आपके और बीच में, एक गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ये पैसा किसको भेजेगा? को भेजेगा? हाँ, अरे तुमको भेजेगा, तुम्हारे पास बॉन्ड है ना, तुम्हारा नाम और एड्रेस उसके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है कि नहीं? तो ये 10,000 एवरी ईयर को किसको भेजेगा? गवर्नमेंट तुमको भेजेगा। यू आर द बॉन्ड होल्डर, शेयर होल्डर होता है वैसे बॉन्ड होल्डर। समझा क्या? लेकिन अपने बॉन्ड के लिए अप्लाई किया, 1 लाख रुपए भर दिए, और इमीडिएटली आपको किसी गर्ल ने प्रपोज किया, और फिर यू मेक योर माइंड टू गेट मैरिड। अभी मैरिज करना है, शादी करनी है, तो पैसा तो लगेगा। तो तुम बोलेंगे गवर्नमेंट को मेरा 1 लाख रुपए दे दो, मेरे को चाहिए, मेरे को शादी करनी है। तो गवर्नमेंट बोलेगा आप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। नहीं तो फिर गवर्नमेंट आपके केस करेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। समझा ना? तो गवर्नमेंट बोलेगा हम नहीं देंगे 1 लाख रुपए, कुछ भी करो। अभी तुम फिर रोने लगेगे, अभी मैं क्या करूं? तो फिर हम आपको बताएंगे रो मत, ये जो बॉन्ड है वो आप बेच सकते हो, दैट इज द दैट इज द ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट।
समझा क्या? वो किसी के पास आपको यू कैन सेल इट। तो फिर अभी आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड के पास जाते हो, ये लेने नहीं है, बॉन्ड है मेरे पास, 1 लाख रुपए मेरे को दे दे, और फिर मेरे नाम की जगह तेरा नाम रजिस्टर, गवर्नमेंट वो बोलता है कि तुमको पैसा भेजने के बजाय हम उनको भेजेंगे, वो दैट इज ओके, नाम नेम जो है वो ट्रांसफर होगा। तो फ्रेंड क्या बोलता है, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है? 10%। फ्रेंड बोलता है मेरे साथ मेरा 10% से क्या होगा? अभी उसको पता है तुमको पैसों की जरूरत है, वो खींचेगा ना आपको, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो वो बोलेगा मेरे को 13% चाहिए, दिया है, मेरे को 13% कम से कम चाहिए। अब फिर तो गवर्नमेंट की तरह दे देना उसका 13%। गवर्नमेंट बोलेगा ये नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है 10%, हम कैसे बढ़ाएंगे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी क्या वे आउट क्या है? वे आउट ऐसा है कि सपोज 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 ड्राइंग से मेरी क्या दुश्मन, सपोज जाने दो, that the face value of the bond is 100 rupees and it is a 10% bond, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% ऑफ 100, 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% से। अभी समझो ये बॉन्ड अपने 100 रुपीज का बॉन्ड 50 रुपीज में बेच दिया, तो अभी गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट देगा? 10 रुपीज। इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना गवर्नमेंट के लिए। अभी ये 10 रुपीज आपको मिलेगा 50 रुपीज के ऊपर, तो 10 रुपीज ओवर 50 रुपीज इज 20% रिटर्न। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहा, लेकिन बिकॉज यू हैव सोल्ड दैट बॉन्ड फॉर द लेसर वैल्यू, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यू इट इज 20%। तो अगर वो तुम्हारे फ्रेंड को, है समझा है ना सिचुएशन, अगर तुम्हारे फ्रेंड को 13% रिटर्न चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का बॉन्ड थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा, ना कि सस्ते में बेचेंगे तो जो 10% होता है 1 लाख रुपए के ऊपर, वही 10% मिलेगा, वही इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़े रिड्यूस्ड अमाउंट पर, बट अमाउंट रिड्यूस इज रिड्यूस, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर इफेक्टिवली। समझा? अभी सवाल ये है कि वो फ्रेंड और तुम मिलते हैं और फिर तुम बोलते हैं कि मैं कम प्राइस में देने के लिए तैयार हूं, तुमको जरूर शादी करनी है। अभी वो फ्रेंड बोलता है कितने में देगा बॉन्ड, तुम बोलते में कितने में लेगा बॉन्ड, वो बोलता है मेरे को नहीं पता, तुम बोलते मेरे को भी नहीं पता कि ये वैल्यू कैसे निकालना है। और तुम कहाँ जाएंगे? तुम जाएंगे बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और बोलेंगे कि ये बॉन्ड मेरे को बेचना है कि जो 10% है वो इफेक्टिवली 13% बनना चाहिए, तो हाउ मच वैल्यू इट शुड बी सोल्ड फॉर, दिस इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। पहले आइटम में किया था कि नहीं किया था? जो स्टूडेंट्स है यहाँ के उन्होंने किया था? नहीं किया था, बोलते हैं ये नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ देते हैं। यही तो सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो टीचर्स छोड़ देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट छोड़ देता है। लुक एट मी। तो अभी सिचुएशन ये है कि ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड कितने वैल्यू में बेचना चाहिए, सो दैट what is told to be, what is assured to be 10%, for you it amounts to 13%। समझा? तो अभी कुछ ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? तुमने बेचा तो ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ओम। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? फ्रेंड को मिलेगा। वो 1 लाख रुपए किसको मिलेगा? फ्रेंड को मिलेगा।
तो फ्रेंड विल गेट समथिंग इन द फ्यूचर. अगर कुछ पाना है तो फिर कुछ डालना पड़ता है. क्या डालेंगे? पैसा डालेंगे. सावट पडा करायचा. तो, तो क्या डालेंगे? पैसा डालेंगे. पैसा कब डालेंगे? कब डालेंगे? आज डालेंगे पैसा. अभी ये 10,000 पर ईयर है कि नहीं? तो ये 10,000 बन गई एन्यूटी एक्स. और हाउ मेनी ईयर्स? 5. तो एन बन गया 5. क्या डिजायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 13%. तो आई विल बिकम 0.13. फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो. फिर क्या निकालो? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो. समझा ना? तो व्हाट विल दैट प्रेजेंट वैल्यू बी? इट विल बी 10,000 divided by 0.13, that into 1 minus 1.13, that raised to -5. निकालो. काय निकालो? आंसर निकालो. हाँ कितना? आई एम एट योर 10,000 50,000 मिलने वाला है तो उसका कम वैल्यू डालना पड़ेगा. हाँ 35,000. विल बी 35,000. 35,000 वॉट? 400 and 172. 172. हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? आज आप 35,172 डालेंगे. तेरा कैलकुलेशन आया क्या? गलती समझा क्या? एक गलती मार्को में गलती. तो 35,172 आज अगर आप डालेंगे, तो देखो मेरी तरफ, तो फिर उस पे इंटरेस्ट को पकड़ के गवर्नमेंट आपको हर साल 10,000 देगा. तो गवर्नमेंट कितना देगा? 50,000 देगा. ये एडिशनल मनी क्यों देगा? इंटरेस्ट भी दिया है ना. तो इसका मतलब है 10,000 मिलने के लिए आज क्या डालना पड़ेगा? 35,000. हो ना? लेकिन आपको ये सिर्फ 10,000 वाला अमाउंट नहीं मिलने वाला है. आपको 1 लाख रुपए भी मिलने वाला है. हर साल मिलने वाला है. 1 लाख रुपए हर साल मिलने वाला है. नहीं, मैं 1 लाख रुपए वन टाइम मिलने वाला है 5 साल के बाद. तो जब वन टाइम मिलता है तो दिस विल बिकम द कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला. यहाँ एन्युटी थी, यहाँ इंटरेस्ट है. क्यों? एक टाइम वन टाइम मिलने वाला 1 लाख रुपए एक ही बार मिलने वाला है. समझा क्या? कब मिलेगा? आफ्टर 5 ईयर्स. आज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो ये हो गई फ्यूचर वैल्यू ए. यस. कितने साल के बाद मिलेगा? तो n इज इक्वल टू 5. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू डिजायर? 13%. तो r हो गया 13%. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a? दैट इज p 1 plus r over 100 that raised to n. Therefore a being 1 lakh, that is equal to p. p तो निकालना है ना. 1 plus 13 over 100 that raised to 5. तो 1 lakh is equal to p into 1.13 that raised to 5. फिर 1 lakh that divided by 1.13 that raised to 5 will be p, present value. हाँ तो ये कब डालना पड़ेगा? आज. मतलब प्रेजेंट वैल्यू है कि नहीं? तो आज आपको 54, कितना आया? 54,000. हाँ इतना पैसा तुम आज डालोगे तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट को मिला के आपको गवर्नमेंट देगा 1 लाख रुपए. समझा क्या? अभी आपके फ्रेंड को क्या मिलेगा? ये 10,000 भी मिलेगा. उसके लिए उसको डालना पड़ेगा 35,000. वो 1 लाख रुपए भी मिलेगा तो उसके लिए इसको डालना पड़ेगा 54,000. और दोनों चाहिए तो दोनों डालना पड़ेगा. बराबर ना? एट ए टाइम दो डालना पड़ेगा.
तो टोटल कितना डालना पड़ेगा? ये प्लस ये, यार हो कि नहीं? ये चाहिए तो इतना डालो, वो चाहिए तो उतना डालो, ये दोनों चाहिए तो दोनों डालो, फिर कितना हो गया टोटल? 89,448। हाँ 48 ना। तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड अगर आप 89,448 में बेचेंगे तो गवर्नमेंट 10% देगा, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए वो 13% बन के सामने आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हो गया। ये शेयर में भी कर सकते हैं ऐसा, समझा क्या? तो बॉन्ड वैल्यू कितनी हो गई? 89,000। ये आपने कैसे निकाला? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एन्युटी and find out the present value of one time money par value. This 1 lakh rupees is par means at par, that value. ये उसके लिए आज डालना पड़ेगा 54,000 जो भी आया है, और टोटल कितना डालना पड़ेगा? 89,000। ये हो गया वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? At what price should the bond be purchased to get the returns of 13%? Your friend has to purchase it for 89,448. समझा? Is that clear everyone? तो करो आपको जैसे चाहिए वैसे लिखो। यू आर नॉट अ केजी किड नाउ, यू आर नॉट इन केजी नाउ, एनी ऑफ यू आर इन टर्न्स। Correct. You are not in KG to the teacher will tell you write this or don't write that. No. The way you want, your notes are your own personal property, write the way you want. लिखो। ये एप्लीकेशन समझा आपको? ये एप्लीकेशन आपको समझा हो मना? तो फिर अभी करेक्ट ना? ठीक है। आई एम अफ्रेड टाइम इज अप, फर्दर डिस्कशन विल कंटिन्यू इन द टुमारो। बट मजा आता है कि नहीं? और एक बार इंटरेस्ट आता है तो फिर पढ़ाई नहीं रहती, पढ़ाई बिकम्स अ एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट।